Hello everyone. Can you all hear me? Hello. Hi Yes, ma'am. everyone. Okay. So it's already 11. Let's begin with our session. Uh, Let me share the screen with you guys. So can you all see this presentation? Yes, ma'am. Okay. So let's begin. I will begin my session with a quote. As Abraham Lincoln once said, "Give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first 4 sharpening the axe." In 2024, the UPSC prelims exam is scheduled on 26th of May, for which only 207 days are left. So, the time to sharpen your axe has now begun. Hello everyone, my name is Dhruvi Srivastav and I am a graduate from IIT BHU. I am here to help you to sharpen your tools so that you may axe down the CSAT paper. So, as you all must have seen in the Telegram channel and in the pics that were shared, these are the contents of our discussion. This will how our discussion will be flowing through. We'll be first discussing about the syllabus of the CSAT paper. Then we'll be doing a small trend analysis of the previous year papers. Then I'll be teaching you some very important techniques, which are the question selection technique and the elimination technique. We'll also be discussing the importance of solving previous year questions. I will tell you and guide you how to prepare for this exam, and most importantly, how to prepare yourself for the day of the exam so that you may increase your efficiency on that day of UPSC prelims, which is on 26th of May 2024. And through this discussion, you all will be having some doubts. So I will be having a separate doubt session towards the end of this discussion. And if you have any doubts, you can even jot it down on a paper. And we'll be discussing every doubts towards the very end. So let's start. So, are you all familiar with the pattern and scheme of this exam? Do we have any responses? The audio is allowed for the participants as well, right? Okay, okay. So you all know the syllabus and scheme of the exam. So just let me talk through it again. So the CSAT paper consists of 80 questions. The maximum marks are 200 marks for the paper, and you have to solve the paper in 2 hours. Okay, so you get 2.5 marks for every correct answer, and 8.833 marks will be deducted for every wrong answer. Right? This is unlike the GS paper 1 of prelims, in which 2 marks are allotted for each right question, and
only 0.67 marks are deducted for negative marking. सिलेबस देखना है, बहुत ज़्यादा एमबी खत्म होता होगा, वीक और क्लास चल रहा है मेरा. So syllabus, coming to the syllabus, सी यूपीएससी ऐसे कोई कैटेगरी नहीं बनाता है कि क्वांट में हम ये पूछेंगे, रीजनिंग में हम ये पूछेंगे एंड इंग्लिश में ऐसा होगा. दे हैव ओनली गिवन अस अ ब्रीफ आउटलाइन स्टेटिंग दैट बेसिक न्यूमरेसी के क्वेश्चंस होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, लॉजिक रीजनिंग होगा. For the sake of simplicity of our preparation, I have categorized this into quant, reasoning and English, so that हमारे लिए trend analysis करना भी आसान होगा and we know what areas to focus and किस पे कितना focus करना है और questions को किस तरह से tackle करना है. So this is the broad syllabus. Detailed syllabus also we'll be discussing. Moving on to the next slide. This is a detailed syllabus. I'm again repeating, यूपीएससी ने कहीं भी ये सिलेबस मेंशन नहीं किया है. ओके, ये सिलेबस वी हैव डिराइव्ड आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द सीसैट पेपर. बेस्ड ऑन द पैटर्न, ये मोस्टली ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे रेशियो प्रपोर्शन हो गया आपका, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम स्पीड, रीजनिंग में इसी तरह से स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इन्फरेंस, कंक्लूजन, डायरेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, एंड you can have a look at the other topics as well. अब the problem comes, many of you I know are from humanities background also. शायद 11th-12th में भी कुछ लोगों के पास मैथ्स नहीं रहा होगा. ऐसे में you get bogged down by these jargons कि यार ये चल क्या रहा है, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और जीएस में क्वालिफाइंग पेपर में नहीं होगा मुझसे, नहीं आते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में. बट यू डोंट हैव टू बी बॉग डाउन बाय दिस. सी, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. दैट इज वॉट यूपीएससी वॉन्ट्स टू चेक इन यू, है ना. एंड इसीलिए दिस क्वालिफाइंग पेपर हैज बीन मेड कंपल्सरी. अब एज योर मेंटर, I will be working on making these topics easy for you, and इस तरह से I will present these topics so that आपका visualization will increase of the concepts. जैसे आपको concepts visualize होने लग जाएंगे, you will find the questions to be very easy. And some questions are difficult, I agree, but mostly geometry के questions या other time speed के भी questions which may seem complicated till now, visualization के साथ में आपका डर खत्म हो जाएगा इन सब topics के साथ में. So this is how we'll be working. Okay, moving on. Okay, so अब देखो, see this topic. Data interpretation. सी, मैंने बोला था ना ये रियल लाइफ में बहुत काम आता है ये टॉपिक्स. अब यहीं पे देखते हैं. I have tried to jot down this data based on the past 10 years previous year questions which have been asked in the CSAT paper of UPSC. अब इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. ठीक है, let me ask you guys, what do you infer from this table? Can you infer this table? Quant has increased, man, and logical reasoning has decreased. Correct, correct. So, as you can see, quant has increased tremendously. Almost it has gone from 15 to 40, more than doubled. Okay.
and logic reasoning has more than halved. So you can also say that they need less of logical people in the services and more of calculative people. So, but jokes apart, एक ट्रेंड जो आपने एनालाइज नहीं किया है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. जस्ट लुक एट द ट्रेंड ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इट हैज मोर और लेस रिमेन्ड कांस्टेंट. मतलब 27 26 के नीचे तो गए ही नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना. ये नेक्स्ट स्लाइड भी मैं डिस्कस करती हूँ, एक मिनट. सी, दिस रेड लाइन depicts the number of quants के question. You can see the spike here. 2019 से एक sudden jump आया है quant के questions में, है ना. And from here 2014-15 questions से तो almost बहुत ही sharp increase है quant के questions में. Logic reasoning, ये जो blue line है आप देख सकते हो, ये भी एक decline की तरफ trending है. But reading comprehension के questions आप देखो, which is the purple line, it has more or less remained the same, and it has mostly been a constant line at least in the past 3-4 years. तो it tells us कि ठीक है, क्वांट में आपको फोकस बढ़ाने की जरूरत है, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस एंड एनर्जी. मतलब क्वांट के लिए हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. दिस इज वन इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस डेटा. सो आगे चल के आई विल बी डिस्कसिंग विद यू अ फ्यू ट्रिक्स कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करना है इजीली. One of those tricks is the question selection technique. See, question selection technique is very important in this paper, है ना. मतलब आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली, सी सैट के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर ली, बट इफ यू डोंट सेलेक्ट द राइट क्वेश्चन इन द एग्जाम, तो पता चला एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में फंस के आपका पूरा पेपर छूट सकता है. एंड अगर पेपर छूटा एंड यू डोंट क्रॉस दैट कट ऑफ मार्क, तो आपके मेंस की प्रिपरेशन, ऑप्शनल की, जीएस की, सब बेकार हो जाएगी. आपका पूरा ईयर की जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं वो सारे सी सैट ना क्वालिफाई होने की वजह से सब खराब हो जाएगा. सो क्वेश्चन सिलेक्शन टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू have to identify the right kind of questions in the exam paper. So, जैसे कि शायद आप लोग जीएस पेपर 1 में भी करते होगे, you generally solve the paper in 3 rounds. Okay. So first we'll be dealing with the easy questions. अब ये है कि easy questions होते क्या हैं? Easy questions are those which are first they are doable and it will take less than 2 minutes to solve. मतलब जब हम पेपर पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन पढ़ के हमें ये लगे कि ये कर भी सकते हैं और टाइम भी बहुत कम लगेगा, लेस देन 2 मिनट्स लगेंगे, उन क्वेश्चंस को आप फट से ग्रैब कर लीजिए एंड सॉल्व दोस क्वेश्चंस. ठीक है, दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स. फिर जब आप राउंड 1 में यू आर फ्लिपिंग थ्रू द पेपर, उस टाइम पे ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको देख के लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है, मे बी दीज क्वेश्चंस आर डूएबल ऑल्सो, बट इट विल टेक मी सम टाइम, मे बी मोर देन 2 मिनट्स टू सॉल्व. उन क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क कर लो, या जो भी आपको, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है उस तरह से आप मार्क कर लो उनको. एंड राउंड 1 ही रीडिंग में आप जब ये क्वेश्चंस मार्क कर लोगे, स्टार मार्क कर लोगे, तब आप जब राउंड 1 आपके इजी क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, राउंड 2 जब स्टार्ट होगा, देन स्टार्ट सॉल्विंग दीज मॉडरेट क्वेश्चंस. ओके. एंड हियर कम्स द मोस्ट ट्रिकी पार्ट, द डिफिकल्ट क्वेश्चंस. These questions are those which are not doable. या तो आपको उनका कॉन्सेप्ट नहीं आता है, या आपको लगता है ये मुझसे नहीं सॉल्व होगा, या होगा भी तो ये इतना टाइम खा जाएगा कि मेरा पूरा पेपर छूट जाएगा. पुट अ क्रॉस ऑन देम. डू नॉट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. ठीक है, ईगो में नहीं फंसना है कि हो कैसे नहीं रहा है सॉल्व. स्पेशली इंजीनियर्स, आईआईटीएंस, उन मतलब वो अपने ईगो पे ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे कैसे, वी आर मैथ्स पीपल, मुझसे कैसे नहीं होगा सॉल्व. इस लूप में नहीं फंसना है. You have to put a cross on them. Do not attempt these questions. Again, I am telling you. ठीक है. अब
कैच ये है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दीज क्वेश्चंस? ठीक है, हियर कम्स द रोल ऑफ प्रैक्टिस. अब देखो, दिस इज क्वेश्चन सिलेक्शन, आपको बेसिकली प्रैक्टिस से ही आएगा. These are two examples that I've taken from 2023 CSAT paper itself. Uh, um, just have a look at question number 4. Please have a look at question number 4. I'll give you 30 seconds. ये नहीं देखना है, सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन. मुझे बस ये बताओ कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो सॉल्व करोगे या नहीं करोगे. हाउ मेनी ऑफ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? Any replies, guys? Rahul? Somebody? बस ये बताओ, सॉल्व करोगे या नहीं करोगे? Yes. Okay. अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख के क्या लगता है कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या शायद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये. और हमें तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता नहीं है, हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, टाइम लगता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है, याद नहीं रहता है, तो हम ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे, है ना. लेकिन आई एम टेलिंग यू गाइज, ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ही नहीं. ये क्वेश्चन सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है. एक बार आपने लॉजिक पकड़ लिया ना इस क्वेश्चन का, एक अरिथमेटिक सिंपल एडिशन से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. तो ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी आपको, बट विथ प्रैक्टिस आपको ये समझ में आएगा कि दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन and it will take you few seconds to solve this question if you know the concept. Abhi, again, I am not going to solve this question right now. There will be probably a separate session for previous year questions, I guess. But the logic is to explain you guys कि question selection technique में practice का क्या role है, and this question has to be, मतलब should be attempted, क्योंकि this is a very easy question. You just need to get a hang of the concept. एंड कॉन्सेप्ट्स हम लोग फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे इसका. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. आई विल अगेन गिव यू अ फ्यू मोमेंट्स टू रीड द क्वेश्चन. इसमें बताओ, आप अटेम्प्ट करोगे ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5? guys, will you attempt it, question number 5? ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो. सिंपल क्वेश्चन है यार, लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, सिंपल चीज पूछी है, 25 रन स्कोर करने हैं 6 फोर्स एंड सिंगल्स का कॉम्बिनेशन बना करके. बट ये इजी क्वेश्चन नहीं है. मे बी मॉडरेट हो सकता है, इजी डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज इसमें इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना कि इट विल टेक यू प्रोबेबली मोर देन 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऑल्सो ऑप्शंस देखो, इसमें ऑल दी ऑप्शंस आर सो क्लोज. सिर्फ एक का डिफरेंस है सब ऑप्शंस में, 18, 19, 20, 21. मतलब आपने एक भी कॉम्बिनेशन अगर मिस आउट कर दिया, एक भी ऐसा पैटर्न है जो आपने नहीं इंक्लूड किया, चांसेस आर कि आपका आंसर गलत आएगा. तो दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन. ये राउंड 1 में तो बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है. ऑल्दो द लैंग्वेज इज सिंपल, सिर्फ 3.5 लाइंस में क्वेश्चन खत्म हो गया. इट सीम्स लाइक एन इजी क्वेश्चन, बट इट इज डेफिनेटली नॉट एन इजी वन, बिकॉज टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा. एंड ये भी हमें प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन भले ही रीड करने में इजी है, बट सॉल्व करने में मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा. दिस विल ऑल्सो कम विथ प्रैक्टिस. ओके, सो there is one important thing that I would like to discuss now. तो देखो, हमने पहले बात करी थी कि ट्रिक्स यूज करने हैं पेपर सॉल्व करने के लिए. ठीक है, उसमें से एक टेक्निक तो हो गई क्वेश्चन सिलेक्शन टेक्निक. द नेक्स्ट टेक्निक इज एलिमिनेशन टेक्निक.
जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन है ना, एलिमिनेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक आजकल आपने सुना होगा, पीपल आर सेइंग, मे बी आप लोगों ने दिया भी हो पिछले साल का प्रीलिम्स पेपर, एवरीबॉडी इज सेइंग कि पेपर बहुत लेंदी है, पेपर बहुत लेंदी है, ठीक है? अब एलिमिनेशन टेक्निक इज वन थिंग जिससे आप टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपना, और आपको पेपर लेंदी नहीं लगेगा। सी, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, आप फ्यूचर में कल जाके आईएएस बनोगे, आपको कम रिसोर्सेज में गवर्नमेंट को रिजल्ट प्रोड्यूस करके देना है, ठीक है? मिनिमम रिसोर्सेज में आपको काम करके देना है गवर्नमेंट को। अब पेपर में आपके पास लिमिटेड रिसोर्स क्या है? टाइम। सो यूपीएससी वांट्स टू चेक कि इन मिनिमम टाइम रिसोर्स आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हो। मे बी दैट इज वाई दे हैव इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, एंड दे वांट टू चेक कि कैसे आप टाइम ऑप्टिमाइजेशन करके यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। ओके, so let's talk about the elimination technique. This will mostly be applicable in the reading comprehension questions, ठीक है? एंड इस एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करके जो आप टाइम सेव करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में, यू कैन अटेम्प्ट मोर क्वांट क्वेश्चंस विद दैट टाइम। सी, अगर हम एक एवरेज पकड़ें कि 26-27 क्वेश्चंस आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, अगर ये टेक्निक यूज करके 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन भी सेव होता है, ठीक है, विच इज इफेक्टिवली 13.5 minutes, है ना? उसमें आपके 4 से 6 एक्स्ट्रा क्वांट क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, विच इज लाइक अ लॉट, ठीक है? एक एक क्वेश्चन पे यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होता है। सो लेट्स सी कि ये टेक्निक हमें अप्लाई कैसे करनी है। अब ये पैसेज देखो, ये सिंपल ही पैसेज है, 2023 के पेपर से ही लिया है मैंने, बट वी विल सी कि कैसे ये टेक्निक अप्लाई करनी है हमें। तो पहले क्या करेंगे, जब भी कोई कॉम्प्रहेंशन आएगा हमारे सामने, फर्स्ट वी विल रीड दी ऑप्शंस। इससे क्या है ना, पहले आप देखो ये पैसेज आएगा, पहले आप पूरा पैसेज पढ़ोगे, फिर सारे ऑप्शंस पढ़ोगे, दिस विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? पहले आप सारे ऑप्शंस पढ़ो, ठीक है? अब ऑप्शंस पढ़ के देख के ही देखो कि कुछ एलिमिनेट हो रहा है क्या। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ऑप्शन ए में इट टॉक्स अबाउट एजुकेशन सिस्टम, ऑप्शन बी टॉक्स अबाउट स्किल डेवलपमेंट, and option C talks about health and nutrition. Option D also talks about health and nutrition. So, using the elimination technique, I can somewhat guess कि क्योंकि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कीवर्ड है, इट इज बीइंग रिपीटेड इन 2 ऑफ द ऑप्शंस, तो चांसेस आर दैट प्रोबेबली सी एंड डी में से ही कोई एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि डेफिनेटली होगा, बट चांसेस हैव इंक्रीज्ड। अब नाउ यू कैन गो बैक टू द पैसेज, ठीक है? अब पैसेज में भी ट्राई टू सर्च फॉर कीवर्ड्स। अब देखो इसमें एनीमिया लिखा है, और ट्यूबरकुलोसिस लिखा है, मैल नरिशमेंट लिखा है, तो इट ऑल द मोर कंफर्म्स कि हाँ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से ज्यादा न्यूट्रिशन और हेल्थ की ही बातें चल रही हैं। तो अब जो हमने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करी थी वो सही है, और सी और डी में से ही आंसर एक सही है। तो एटलीस्ट आपका 50% तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना, विच इज लाइक अ लॉट। 50% एलिमिनेट हो जाना रॉन्ग आंसर्स इज अ वेरी गुड पोजिशन टू बी इन। अब जो एक जो स्मॉल नुआंसेस हैं बिटवीन सी एंड ऑप्शन डी, अब आप वापस जा करके यू कैन रीड द पैसेज एंड यू कैन सी की व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, एंड यू कैन देन सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस फ्रॉम सी एंड डी। अब जब आपने ऑप्शंस पढ़ लिए हैं ना, तो पैसेज रीडिंग विल आल्सो टेक वेरी लेस टाइम, बिकॉज यू नो मोर और लेस व्हाट द पैसेज इज गोइंग टू टॉक अबाउट। एंड अब जब आपने ये ऑप्शंस भी पढ़ लिए हैं सी एंड डी, यू नो कि इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि ऑप्शन सी में इट सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन, एंड डी सेज ऑफ द पीपल इन जनरल को कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे हमें अटेंशन पे करना चाहिए फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यू कैन गो बैक टू द पैसेज एंड चेक कि इनमें से क्या सही ऑप्शन है। अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग द पेपर हियर, आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग इट। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सेव ऑन योर टाइम। एंड ये टेक्निक जब आप यूज करोगे ना, आई एम टेलिंग यू, पेपर आपको लेंदी नहीं लगेगा। ओके, नाउ
अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन क्वेश्चन सिलेक्शन आल्सो एंड इन दिस एलिमिनेशन टेक्निक आल्सो। जब आप कई पैसेजेस में अप्लाई कर लोगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे ये टेक्निक अप्लाई करनी है। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इसके लिए सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 10 ईयर के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही चाहिए, आई वुड से। ठीक है, अब देखो जैसे 2020 में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, बस नंबर्स चेंज करके द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, द एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट इज रिपीटेड इन 2023। तो अगर आप ये 2020 का क्वेश्चन करके गए होते तो 2023 वाला जो क्वेश्चन है वुड हैव बीन अ पीस ऑफ केक फॉर यू, है ना? तो इससे नॉट ओनली कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बट हमारा टाइम भी ऑप्टिमाइज हो रहा है, हमें अब कम टाइम लगेगा बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू फॉर अस। ठीक है, वी नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड as we discussed, time is the most important resource in this paper. अब ये तो चलो इजी क्वेश्चन था, आप कहोगे कि अगर मैंने नहीं भी सॉल्व किया होता तो भी मैं सॉल्व कर लेती या कर लेता इसमें। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन का एग्जांपल हो गया। अब टफ क्वेश्चन का एग्जांपल देखो, ये 2023 का पेपर देखो। अब सी, ऑल्दो 2020 के ये जो दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का ही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है इन दिस 2023 पेपर, but still this question is difficult and definitely not doable in less than 2 minutes. मैं तो even in exam conditions I would also have left this question because ये एक अकेला ऐसा question है जिसमें potential है कि वो आपका पूरा पेपर छुड़वा देगा। ठीक है, मतलब you will get stuck in this question and जब आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर लिया होता है ना किसी क्वेश्चन में and you're not able to solve that, तो यू गेट ऑल द मोर फ्रस्ट्रेटेड कि यार इतना टाइम भी इन्वेस्ट कर लिया, अब तो सही आंसर निकालना ही पड़ेगा। यू गेट स्टक इन दैट लूप एंड ऑल द इजी क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू कम अहेड, आप वो सारे आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो अगेन आई एम सेइंग इट इज it depends on your comfort level. If you're comfortable with the concept, so you can solve it. I would have left it. Again, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है? अब 59 और 60 क्वेश्चंस देखो 2020 के। अब या तो आपने इससे कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है ना और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो यू वुड हैव बीन मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है, आई हैव डन अ सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियसली, सो आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, और मे बी आप सॉल्व कर लोगे। या फिर आपने ये समझ लिया कि यार दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, so again I will not be able to solve this year also, so at least this question will be like a well left question for you, है ना? कि इस बॉल को नहीं खेलना है आपको बिकॉज आउट होने का पोटेंशियल है। करेक्ट, सो दिस इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये चीज भी, ये जो एक हंच है ना कि दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये तभी बिल्ड होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना? एंड अगेन आई एम सेइंग एटलीस्ट 10 ईयर के पेपर्स तो यू शुड सॉल्व। Now coming to the next slide. See, all of this said and done, अब बात करते हैं कि हमारा प्रिपरेशन का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आर यू कंफर्टेबल? Are you guys comfortable? Okay. Okay. So coming to the preparation strategy, see, I would say that you should finish CSAT in the next 3 months. ठीक है, अभी थोड़ा लीन पीरियड है, जैसे जैसे प्रीलिम्स पास में आएगा जीएस की टेंशन शुरू हो जाएगी, ऑप्शनल की टेंशन शुरू हो जाएगी, तो अभी सीसैट करके खत्म करो, बी डन विद इट। ठीक है, एंड डू नॉट थिंक कि यार सीसैट में प्रिपेयर करने जैसा क्या है, पेपर के दिन देख लेंगे, क्वालिफाइंग ही तो है। बिकॉज यूपीएससी हैज कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड इट्स डिफिकल्टी लेवल, क्वांट के भी क्वेश्चंस इट हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, and I have seen a lot of people getting stuck because of not being able to qualify the CSAT paper. तो
वही है ना, मतलब आपने सारी मेहनत करी, ऑप्शनल प्रिपेयर करा, पूरा साल लगाया, जीएस प्रिपेयर करा, इफ यू गेट स्टक इन द सीसैट पेपर, it is a very sad situation to be in. I don't want you guys to waste another year just because of this CSAT paper. तो अभी करके खत्म करो, you will also have that confidence. और इसका एक और फायदा है कि इफ यू आर डन विद द सीसैट पेपर, आप मॉक्स भी बेटर तरीके से दे पाओगे. आई विल डिस्कस आगे कि कैसे. सो द सेकेंड पॉइंट को देखो. अब जब आप सी गिविंग मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व भी कर पा रहे हो, बट उस लिमिटेड टाइम में, उस प्रेशर में, क्या आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, है ना. सीइंग दैट, जजिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर विच यू शुड प्रैक्टिस मॉक्स. बट मॉक्स ऐसे नहीं प्रैक्टिस करने की सुबह उठे और फ्रेश माइंड से हमने एक मॉक दे दिया और बहुत अच्छे मार्क्स आ गए और हम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए कि अरे वाह, सीसैट तो अब निकल जाएगा. नहीं, मैं बोलूंगी कि एकदम एग्जाम लाइक कंडीशंस में मॉक्स दो, विच नॉट ओनली टॉक्स अबाउट कि 2 आवर्स का ड्यूरेशन में आपको मॉक देना है. इट इज कि आप पहले मॉर्निंग में उठो, एक जीएस का पेपर सॉल्व करो, प्रीलिम्स का. ठीक है, जीएस पेपर इज वेरी एग्जॉस्टिंग. ठीक है, आजकल स्पेशली जिस तरीके का पेपर आ रहा है प्रीलिम्स में, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एग्जॉस्टिंग. वो पेपर दे के उस एग्जॉस्टेड माइंड सेटअप के साथ सीसैट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इज वेरी डिफरेंट देन सुबह उठ के फ्रेश माइंड से एक सीसैट का मॉक प्रैक्टिस करना. सो आई वॉन्ट यू कि आप, जैसे होता है ना, जीएस का पेपर 1 दो, फिर ब्रेक लेकर के फिर जीएस 2 सीसैट का पेपर सॉल्व करो, आप उन कंडीशंस में ही पेपर सॉल्व करो. अब क्या है कि जब आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में सीसैट खत्म कर लोगे, देन ओनली आपको मॉक सॉल्व करने में कंफर्टेबल फील होगा. ठीक है, अब तो जीएस के आई थिंक तो मॉक स्टार्ट भी हो गए हैं आना, आई थिंक. तो इट विल गेट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन. Okay. And as I already told you, uh, previous year questions should be solved from 2014 to 2023. What you can do is, जब आपका CSAT prepare हो जाए, and then you start giving mocks, तो instead of कि आपने कोई कोचिंग का मॉक उठा लिया या कोई नया मॉक उठाया, you can also pick up a previous year question paper and solve it like a mock. So you will also get a hang of things कि क्या pressure situation होती है, and उस प्रेशर में कुछ आते हुए कॉन्सेप्ट्स भी शायद आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, या एग्जैक्टली कैसा फील होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आप ज्यादा कंफर्टेबली जज कर पाएंगे. एंड विद दिस 3 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, आई थिंक आपको साइमल्टेनियसली यू शुड प्रिपेयर अ फॉर्मूला और अ ट्रिक शीट. मतलब बहुत छोटा एक शीट ऑफ पेपर होना चाहिए, वेरी कंसाइज. एंड ये फर्स्ट इटरेशन में नहीं बनेगा. पहली बार आपको ऐसे, जैसे नोट्स बनाने के टाइम हंच होता है ना कि सब कुछ ही लिख लेते हो आप, विद एवरी रिविजन वो और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा. तो फाइनली जो आपकी एक फॉर्मूला शीट या रिवीजन शीट बनेगी ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी कंसाइज. एंड वो इतनी कंसाइज होनी चाहिए कि जस्ट बिफोर द एग्जाम, प्रीलिम्स जिस वीक में होने वाला है, उस वीक में भी कभी भी आपने उठा करके वो शीट से रिवीजन कर लिया और एक क्विक रिवीजन आपका हो गया, है ना. सो दैट इज अ की. and ये formula sheet will save you a lot of time again with your preparation. Oh, sorry. Now अब आपने सारी प्रिपरेशन कर ली, सब कुछ रेडी हो गया, एग्जाम डे पे आप अपनी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करोगे. ठीक है, मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि साल भर मेहनत करी, पढ़ाई करी, सब प्रिपेयर करा, जीएस अच्छे से प्रिपेयर करा, बट उस दिन माइंडसेट खराब होने की वजह से पेपर खराब हो गया. वो कैसे नहीं होने देना है, एंड हाउ ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू हैव टू प्रोड्यूस मैक्सिमम रिजल्ट्स. लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. तो सबसे पहले द इम्पोर्टेंट थिंग इज, डू नॉट डिस्कस जीएस पेपर 1 आंसर्स इन द ब्रेक.
डू नॉट डिस्कस देम। क्योंकि क्या होता है ना, आप जनरली वही आंसर्स डिस्कस करते हो जिसमें आप डाउटफुल होते हो। अब वो आंसर्स गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी हाई होती है, यू गेट बॉट डाउन बाय दैट, और वो आपका एग्जाम टेम्परामेंट खराब कर देता है, तो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं निकल के आती है पेपर 2 में। तो आई वुड अगेन से डू नॉट डिस्कस द पेपर। वो बाद में भी हो सकता है, इन द इवनिंग आल्सो यू कैन डू इट, ठीक है। एंड it is very important to give your mind some rest. I have seen people की ब्रेक में बुक्स लेके, फॉर्मूला शीट लेके लगे पड़े हैं कि पढ़ और पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, बट उससे क्या होता है ना, योर माइंड इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। क्योंकि देखो, कई बार तो प्रीलिम्स के एक दिन पहले नींद भी नहीं आती है रात में ठीक से, यू आर ऑलरेडी ओवर वर्किंग योर सेल्फ। आपने एक जीएस का पेपर दिया हुआ होता है, सुबह से ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व होती है, स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज। तो just give your mind some rest, meditate for a while if you can, ठीक है। एंड अच्छे से rested mind होगा तभी you will be able to solve the paper with a calm and collected mindset. Now ये यार एक पर्सनल चीज है जो आई यूज टू फॉलो ड्यूरिंग द एग्जाम। आई जनरली यूज टू कीप सम टॉफी और eclair with me, and I used to eat it either just before going to the exam hall, or kabhi kabhi if that was allowed, to I would just pop in a toffee during the exam also. It gives you a lot of boost to your brain, matlab glucose milta hai na brain ko, and it starts functioning better. This is my hack. You can see if you're comfortable with it. Okay. And again, I would say sipping some water during the exam to keep your self hydrated is also very important, especially North India में जहाँ इतना scorching heat होती है, May is very warm, and just be hydrated. बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पी लेना है so that you end up uh, making rounds to the loo all the time. नहीं, just keep yourself hydrated, and it also gives you some break to uh, think about the difficult questions or the complicated questions. Okay. And okay, so does anyone have any doubts? Any doubts, anybody? Everyone comfortable with what I told you? Okay, good. So if you have any queries or anything, you can feel free to contact me. And I think we'll be sharing my Telegram link also in that Telegram channel. So, and we'll be having further sessions also on maybe previous year questions. So just feel free to communicate anytime that you like. Okay. Mm, what PYQ analysis? Okay, that class, I think you'll be updated about that later on. Just keep checking that channel and Karm Yogi IAS channel, and I think you'll be updated. Okay. Okay. Thanks, all of you. I hope this was a helpful session, and all the best to you guys.